Hello, viewers, welcome in the sixth lecture of Modern History by B.L. Grover. If you have not checked out the previous lecture, do give it a look in the Modern History playlist. The topic for today is social and economic conditions in the 18th century. We have earlier covered the causes of downfall of Mughal Empire, later Mughal emperors, later Mughal novels, and attacks from the northwest. So, despite political convulsions and instability in the 18th century, the society in general retained most of its traditional features with some changes thrown in by new environment. तो पॉलिटिकल चेंजेस इंस्टेबिलिटी थी 18th सेंचुरी में, इसके बावजूद जो समाज है उसकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक थी वो कहीं ना कहीं मेंटेन हुई. कुछ कुछ बेसिक चेंजेस आए बट ज़्यादातर ब्रॉड एंड शॉर्ट द सोसाइटल फॉर्मेशन वॉज सिमिलर. सबसे पहला सब टॉपिक है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. At the apex of the social order was the emperor, closely followed by the nobility, which despite hard time led a life of luxury and extravagance with great weakness of wine, woman and music. At the lowest rung of the ladder was preponderant majority of poor agriculturalist and artisan in village. In the middle came small and frugal middle class comprising small merchants, shopkeepers, lower cadre of employees, town artisans, etc. Paucity of contemporary evidence and disparities in income and prices in different regions of the country makes any comparison of standard of living a difficult exercise. The institution of caste stands out, striking feature of Hindu society of the time. Caste rules prevailed in matters of marriage, dress, diet, and even professions. However, economic pressure and administrative innovations introduced by the English East India Company compelled some to look beyond their ancestral profession. So, what is being discussed about here is social stratification of the Indian society in the 18th century. And society is somewhat divided like this. If we if we use a pyramid to explain how the society was actually, so we can make it like this. And on the top of the pyramid lies the king and nobility. On the lowest rung lies what? On the lowest rung lies artisan and agriculturalist. तो आर्टिशन और एग्रीकल्चरलिस्ट हैं. और मिडिल क्लास में कौन आ जाते हैं? स्मॉल मर्चेंट्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, तो ये लोग मिडिल क्लास में आ जाते हैं. अब ये जो किंग और नोबेल्स हैं इनकी इनकम और एग्रीकल्चरलिस्ट और आर्टिशंस की इनकम में इतना अंतर है, इतना स्टार्क डिफरेंस है कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है. एग्रीकल्चरलिस्ट आर्टिस्ट के पास कुछ खाने को नहीं है, चीज़ें नहीं है, दे आर लिविंग अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी. उसी समय नोबेलिटी और किंग जो है ना, दे आर लिविंग अ लाइफ ऑफ लग्जरी, एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ जी रहे हैं. वुमेन, म्यूज़िक, इसमें अपने टाइम को, वाइन, इसमें अपने टाइम को क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं इसी तरीके से अपने टाइम को. और क्या हो रहा है? ये जो लोएस्ट रंग है या इवन फॉर दैट मैटर स्मॉल मर्चेंट, शॉपकीपर, दे आर ऑल्सो नॉट हैविंग अ वेरी गुड टाइम. बट क्या है ना, इंडिया, इफ़ दिस इज़ इंडिया फॉर एग्जाम्पल, लेट अस कंसिडर दिस डायगोनल एज इंडिया, तो इसके इस पोर्शन में थोड़ा डिफरेंट है कंडीशन, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है. तो ये बहुत ही टीडियस डिफ़िकल्ट टास्क बन जाता है कि हम एज अ होल एक बता दें कि आर्टिशंस की ये हालत थी, क्योंकि किसी एक एरिया में हो सकता है कि शॉपकीपर्स की बहुत अच्छी हालत है, दूसरे एरिया में नहीं है. हो सकता है किसी दूसरे एरिया में क्या है, एग्रीकल्चरलिस्ट की अच्छी हालत है बट कहीं और नहीं है. और सोसाइटी में इसके साथ साथ जो है, बात की जाए कास्ट रूल्स की, तो कास्ट रूल जो है ये प्रिवेल करती थी कुछ मैटर्स में, जैसे कि मैरिज. तो मैरिज जो है वो एंडोगैमी प्रैक्टिस होती थी कास्ट में, मतलब एक ही कास्ट में शादी होती थी. ड्रेस की बात की जाए तो जनरली एक कास्ट के लोग सिमिलर ड्रेस पहना करते थे. डाइट
भी काफ़ी हद तक, जैसे कि ऐसा एक माना जाता था कि जैसे कोई अगर ब्राह्मण है तो उसको क्या करना है, उसको प्याज लहसुन नहीं खानी है, उसको नॉनवेज नहीं खाना है, और यहीं पर अगर कोई शूद्र या लोअर रंग को बिलोंग करते हैं तो दे कैन हैव दिस food, they can have vegetables like onion, garlic and also have non-veg. इसके साथ साथ जो है प्रोफेशंस की बात की जाए ना, तो प्रोफेशन में हम लोग कास्ट इनिशियली तो फॉलो होता था, बट बाद में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने की वजह से इंडिया का इकोनॉमिक ड्रेन होता है, इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट होता है जो इंडिया पर, उसके बाद लोग अपने ना एंसेस्ट्रल प्रोफेशन से थोड़ा डेविएट होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि वुमेन की क्या प्लेस थी इन द 18th सेंचुरी, तो वुमेन वर गिवन अ प्लेस ऑफ रिस्पेक्ट इन होम सोसाइटी बट नॉट ऑफ इक्वालिटी एज वी अंडरस्टैंड द टर्म टुडे। हिंदू सोसाइटी बीइंग मेनली पेट्रियार्कल except in the Malabar and some backward areas, the will of male head of the family usually prevailed. तो क्या होता है कि वुमेन को रिस्पेक्ट मिल रहा है सोसाइटी में, घर में, लेकिन इक्वालिटी जैसी कोई बात नहीं है। जैसा इक्वालिटी को हम आज परसीव करते हैं वैसी कोई बात नहीं है। हिंदू सोसाइटी मेनली पेट्रियार्कल है, दो एक्सेप्शन है, मालाबार और बैकवर्ड एरियाज़ में जो है सोसाइटी इज़ नॉट पेट्रियार्कल। वहाँ पर क्योंकि लिविंग अर्न करने के लिए मेल फीमेल दोनों को काम करना पड़ेगा, तो सोसाइटी पेट्रियार्कल हो भी नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिल रहा है फीमेल को भी। बट बाकी जगह पे जो मेल हेड होते थे ना फैमिली की, उनकी ही विश चलती थी। एग्जाम्पल्स लेकिन दी जा सकती है हिंदू और मुस्लिम वुमेन की, जिन्होंने सिग्निफिकेंट रोल जो है उस समय के पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर स्कॉलर लाइक फील्ड में किया है। कॉमन वुमेन जो है उनको एक राइट प्लेस नहीं मिलती थी सोसाइटी में। पर्दा सिस्टम जो है ये ना सिर्फ मुस्लिम बट हिंदू फैमिलीज में भी जो है कॉमन थी। वुमेन ऑफ पुअर फैमिलीज आउट ऑन वर्क फॉर लाइवलीहुड कुड नॉट ऑब्जर्व इट। लेकिन पुअर फैमिली की वुमेन इस मैटर पर प्रिविलेज थी, क्योंकि उनको बाहर जाना है, उनको वर्क करना है, तो वो पर्दा ऑब्जर्व नहीं करती थी। चाइल्ड मैरिज जो है ये कॉमन थे, दोनों लड़के लड़की दोनों के लिए चाइल्ड मैरिज कॉमन थे। थ्रू कंज्यूमेशन यूजुअली टुक प्लेस, दो कंज्यूमेशन यूजुअली टुक प्लेस आफ्टर द अटेनिंग द एज ऑफ मेच्योरिटी। यहाँ का मतलब है कि मैरिज भले ही बचपन में हो जाता था, बट दे स्टार्टेड लिविंग टुगेदर आफ्टर अटेनिंग एन एज ऑफ मेच्योरिटी। डाउरी सिस्टम की बात की जाए तो ये काफ़ी प्रिविलेंट थी अपर क्लास में। पॉलीगैमी जो है ये सारे अपर क्लास में, हिंदूज में भी और मुस्लिम्स में भी, जो भी अपर क्लास हैं, बड़े बड़े ज़मींदार हैं, तो इन लोगों में पॉलीगैमी वॉज प्रिविलेंट। बेटर मीन्स और कॉमन मैन जो है वो तो उसे अपना वो किसी तरह से एक फैमिली मैनेज करता था, तो पॉलीगैमी इट वॉज लाइक ही वॉज नॉट एबल टू डू इट। पॉलीगैमी इन शॉकिंग प्रपोर्शन प्रिवेल्ड अमंग द कुलीन फैमिलीज। तो कुलीन यानी कि बड़ी बड़ी जो फैमिली होती थी उत्तर प्रदेश बंगाल की, वहाँ पर भयंकर लेवल पर पॉलीगैमी चलती थी। रीमैरिज जो विडोज़ की थी वो जनरली एक गलत प्रैक्टिस मानी जाती थी कि रीमैरिज नहीं कराना चाहिए, ऐसा माना जाता था। सरप्राइजिंगली पेशवास जो है इन्होंने एक टैक्स इम्पोज किया था, उस टैक्स का नाम था पटदम। पटदम जो है वो रीमैरिज ऑफ विडोज़ पर टैक्स लगता था। अगर आप विडो का रीमैरिज कराते हो तो आपको टैक्स देना है महाराष्ट्र के एरिया में, एंड दैट टैक्स इज कॉल्ड पटदम। एविल प्रैक्टिस ऑफ सती। सती में क्या होता था कि द वाइफ हैड टू बर्न इन द सेम पायर ऑन विच द डिसीज्ड हस्बैंड ऑफ द पर्टिकुलर वाइफ वॉज केप्ट। तो दिस वॉज द प्रैक्टिस ऑफ सती, और ये जो है ये प्रिवेल कर रही थी कहाँ पर? बंगाल, सेंट्रल इंडिया और राजपूताना एरिया में, अपर कास्ट में। पेशवा जो है वो सती को डिस्करेज करते थे। द नेक्स्ट सब टॉपिक इज स्लेवरी। अनदर सोशल एविल वॉज द प्रिवेलेंस ऑफ स्लेवरी। ब्रॉडली स्पीकिंग, slaves could be classed into two categories: domestic slaves and the serfs tied to the land. तो दो तरह के गुलाम हैं, एक तो डोमेस्टिक स्लेव हैं जो हाउस होल्ड चोर्स कर रहे हैं, और दूसरे सर्फ हैं जो लैंड पर वर्क कर रहे हैं। लैटर कैटेगरी जो है सर्फ की, सर्फ्स वे ट्रांसफर्ड विद द सेल ऑफ लैंड टू न्यू मास्टर। तो सपोज एक कोई पर्सन है ए, उसकी ये लैंड है
और ए के पास जो है वो 5 ऐसे गुलाम हैं जो ये लैंड पर वर्क करते हैं, खेती बाड़ी जो भी करवाता है ये। अब ए को कुछ नीड पड़ गई और ए ने क्या कर दिया, बी को ये ज़मीन बेच दिया। तो ये ज़मीन बस नहीं बिकेगी, साथ साथ ये जो 5 गुलाम हैं ये भी चले जाएंगे बी के लिए काम करने पर। यूरोपियन ट्रैवलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स हैव टेस्टिफाइड टू द वाइड स्प्रेड प्रेवलेंस ऑफ स्लेवरी इन इंडिया। तो यूरोपियन ट्रैवलर्स जिन्होंने अपना ट्रैवल लॉग लिखा है, उन्होंने बताया है कि भारत में जो है एक्सट्रीम अमाउंट पे वाइड स्प्रेड प्रेवलेंस थी स्लेवरी की। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, फेमाइंस, नेचुरल कैलामिटीज़, एक्सट्रीम पॉवर्टी, ये सारी वजह से जो है पेरेंट्स क्या करते थे, अपने बच्चों को बेच दिया करते थे कुछ पैसे के लिए, और यही बच्चे आगे चल के स्लेव बन जाते थे। राजपूत, खत्रीस, कायस्थ यूजुअली केप्ट स्लेव वुमेन फॉर डोमेस्टिक वर्क। तो ये लोग जो है एक फीमेल स्लेव रखा करते थे घर के काम के लिए। हाउएवर स्लेव इन इंडिया वेर ट्रीटेड बेटर, लेकिन इंडिया में जो स्लेव थे उनका ट्रीटमेंट फिर भी अच्छा था अमेरिका और यूरोप के स्लेव ट्रीटमेंट के कंपैरिजन में। स्लेव को जो है यूजुअली ट्रीटेड हेरिडिटरी सर्वेंट माना जाता था कि अब उसके फैमिली का भी दूसरा लोग आएगा तो वो भी सर्व करेगा, बट ठीक है सर्वेंट्स की तरह ट्रीट किया जाता था फैमिली का, और उनको मीनियल नहीं माना जाता था, फैमिली सर्वेंट माना जाता था, और उनको शादी करना अलाउड था। वो अपने ऑफस्प्रिंग्स बना सकते, वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ कर सकते थे, ठीक है, अमंग देमसेल्फ, एंड द मेन ऑफस्प्रिंग ऑफ सच मैरिज वॉज कंसिडर्ड एज फ्री सिटीजन। और जो मेन ऑफस्प्रिंग होते थे स्लेव मैरिजेस में, अगर 2 स्लेव ने शादी की है तो उनका जो मेन ऑफस्प्रिंग है उसको फ्री सिटीजन भी माना जाता था। स्लेवरी एंड स्लेव ट्रेड touched new dimension with the coming of European in India, particularly the Portuguese, Dutch and English. तो इनके आने से स्लेवरी जो है वो थोड़ा और बढ़ गया इंडिया में। देयर इज अ मेंशन ऑफ कोर्ट हाउस एट कैलकटा in 1752 which regularly purchased and registered slaves, charging a registration fee of ₹4 for each entry. तो एक जगह है कैलकटा में जिसका नाम है कोर्ट हाउस। तो 1752 का एक मेंशन मिलता है कि कोर्ट हाउस जो है ये रेगुलरली परचेज करती थी और रजिस्टर करती थी स्लेव को, और हर रजिस्ट्रेशन में कॉस्ट होता था ₹4। यूरोपियन कंपनी जो है स्लेव्स को खरीदती थी प्राइजेज में 5 से लेकर के ₹15 फॉर अ गर्ल, 5 to 15 रुपी इफ द गर्ल इज ऑफ 10 years, else 12 to 20 रुपी फॉर अ बॉय ऑफ 16, और 15 से 20 रुपी फॉर अ फुल ग्रोन एडल्ट सेव फ्रॉम द मार्केट ऑफ बंगाल, असम, बिहार। और इनको क्या किया जाता था, फिर इन लोगों को खरीद करके यूरोप, अमेरिका में बेच दिया जाता था। There are reports of Europeans at Surat, Madras and Calcutta purchasing Abyssinian slaves, employing them for domestic work. तो यूरोपियंस के हमें रिपोर्ट मिलते हैं कि वो लोगों ने क्या किया था, सूरत, मद्रास, कैलकटा, यहाँ से एबिसिनियन यानी कि अफ्रीकन स्लेव्स को क्या किया था, परचेज किया था और उनको डोमेस्टिक काम में लगा दिया। Traffic in slave was abolished by proclamation issued in 1789. तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है ना, वैसे ही स्लेव ट्रैफिकिंग भी होती थी, तो उसको जो है ख़त्म किया गया 1789 के एक प्रोक्लेमेशन के थ्रू। लेकिन रूरल स्लेवरी जो है ना, शॉन ऑफ मेनी ऑफ इट्स क्लासिकल क्रूडिटीज कंटिन्यूज इन इंडिया इवन टुडे। तो आज भी लेकिन रूरल स्लेवरी जो है ये इंडिया में प्रेवलेंट है, और हम देख सकते हैं कि गांव में कोई गरीब है तो उसके घर के वो जो है वो किसी और के घर पे काम कर रहा है, उसके बच्चे भी उसी के घर पे काम कर रहे हैं। तो दिस इज़ काइंड ऑफ रूरल स्लेवरी, ये इंडिया में आज भी प्रेवलेंट है, और शायद इसलिए क्योंकि इसका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं होती है। नाउ टॉकिंग अबाउट एडुकेशन, the love of learning has always exercised powerful influence on both Hindu and Muslim mind. However, the idea of Indian education was culture and not literacy. तो Indian education की अगर बात की जाए तो यहाँ पर education में हम culture पर ज़्यादा फोकस करते हैं और शब्द ज्ञान पर कम, लिटरेसी पर कम। वोकेशनल एजुकेशन भी दिया जाता था,
जो आज हम लोग वापस से नई एजुकेशन पॉलिसी में लॉन्च कर रहे हैं, ये पहले भी दी जाती थी, बट ये कैसे दिया जाता था, ये वर्ण के हिसाब से मिलता था कि आप ब्राह्मण हैं, कि आप क्षत्रिय हैं, कि आप वैश्य हैं, उस हिसाब से आपको फैमिली ट्रेडिशन के हिसाब से आपको क्या मिलता था, आपको जो फैमिली ट्रेडिशन के हिसाब से जो भी प्रोफेशन, स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन थी, वो पास ऑन हो जाता था। बोथ हिंदू एंड मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन लिंक्ड लर्निंग एंड रिलीजन। तो यहाँ पर क्या था ना कि स्टडीज इन रिलीजन हैड अ कॉमन रोड, हैड अ मीटिंग पॉइंट। तो ये दोनों को ना साथ मिला के पढ़ा जाता था, रिलीजन से लिंक करके कर दिया जाता था लिटरेचर को। हायर एजुकेशन के लिए संस्कृत लिटरेचर में कुछ जगह पर क्या थे, सेंटर्स थे, जिसको कहा जाता था चाटुस्पथीस या फिर टॉल्स कहा जाता था बंगाल में, और बिहार में हमें मिलता है नादिया, काशी, तिरहुत एंड उत्कल। ये सारे जगह जो है ना रेप्यूटेड थे संस्कृत एजुकेशन के लिए। फ्रेंच ट्रैवलर जो इंडिया आएंगे, बर्नियर, ये कहेंगे कि काशी जो है ये क्या है, ये एथेंस है इंडिया की। एथेंस जो है वो ग्रीक का एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग सेंटर था। तो वो बताते हैं बर्नियर कि काशी जो है वो इंडिया की एथेंस है। Aspirant for higher Sanskrit education flocked to its numerous institution। तो बहुत सारे लोग जो है जिनको हायर संस्कृत एजुकेशन चाहिए तो वो काशी जाया करते थे। इंस्टीट्यूशन फॉर लर्निंग ऑफ हायर एजुकेशन इन पर्शियन एंड अरेबिक वेयर कॉल्ड मदरसास। तो अगर किसी को पर्शियन या अरेबिक में हायर लर्निंग चाहिए तो उन्हें मदरसा जाना होता था। पर्शियन जो है ये कोर्ट लैंग्वेज हुआ करती थी मुस्लिम्स की, इसलिए इसको मुस्लिम्स हिंदू दोनों पढ़ा करते थे फॉर गेटिंग अ जॉब इन द गवर्नमेंट सर्विसेज, क्योंकि ये कोर्ट लैंग्वेज थी मुगल्स के टाइम पर। अजीमाबाद जो कि पटना में है, ये एक रेप्यूटेड सेंटर थी पर्शियन एजुकेशन की ईस्टर्न इंडिया के लिए। अब वो लोग जिनको कि कुरान या मुस्लिम थियोलॉजी को स्टडी करना है, ये अरेबिक में प्रोफिशिएंसी, अरेबिक में स्किल ऑक्यूपाई करते थे। बात करें एलिमेंट्री एजुकेशन की, तो एलिमेंट्री एजुकेशन ये काफ़ी वाइड स्प्रेड थी। हिंदू एलिमेंट्री स्कूल को पाठशाला कहा जाता था, मुस्लिम एलिमेंट्री स्कूल को मकतब्स कहा जाता था। ये स्कूल जो है ये यूजुअली टेम्पल्स से अटैच नहीं होती थी या मॉस्क से अटैच नहीं होती थी एलिमेंट्री एजुकेशन। स्टूडेंट जो है उनको इंस्ट्रक्शन जो है वो 3R के बेसिस पर दिया जाता था, दैट इज़ रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। So it sounds as R, not necessarily starts from R. So writing also sounds as starting from R, and arithmetic also sounds as starting from R. So that is why 3 R's. Moral instruction जो है ये भी दिया जाता था, truth, honesty, obedience, पेरेंट्स के साथ फेथ, रिलीजन में लेकर के ये सारी चीज़ों को भी सिखाया जाता था एलिमेंट्री एजुकेशन में ही। दो एजुकेशन वॉज मेनली पॉपुलर विथ हायर कास्ट, देयर वेयर केसेस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ लोअर कास्ट अटेंडिंग स्कूल। ऐसा नहीं है कि लोअर कास्ट के बच्चे स्कूल नहीं अटेंड करते थे, बट कम केसेस थे। और फीमेल एजुकेशन जो है ये काफ़ी कम इसको अटेंशन दिया गया, बहुत कम अटेंशन। नेक्स्ट इन द टॉपिक इज आर्ट एंड लिटरेचर। In the field of art and literature, absence of patronage of Delhi led to flight of talent to newly established state capitals like Hyderabad, Lucknow, Murshidabad, Jaipur। तो दिल्ली में जब पैट्रोनेज नहीं मिलने लगा, क्योंकि अब मुगल सल्तनत ही बर्बाद हो चुकी है, तो पैट्रोनेज देगा कौन। तो ऐसे में ये लोग जो है नए नए स्टेट्स जैसे कि हैदराबाद बन गया और लखनऊ, तो ये सारे स्टेट्स जो फ्लरिश कर रहे थे यहाँ पर जाने लगे जो टैलेंटेड लोग थे अपने लक को आजमाने के लिए। असफुद्दौला जिन्होंने ग्रेट इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा बनाया है, अ बिल्डिंग फॉर सेलिब्रेशन ऑफ मुहर्रम। तो इमामबाड़ा में क्या होता है, मुहर्रम मनाया जाता है। लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा जो है 1784 में किसने बनाया, असफुद्दौला ने बनाया। एब्सेंस ऑफ एनी पिलर और सपोर्ट मेक्स इट आर्किटेक्चरली इंटरेस्टिंग। क्यों ये इंटरेस्टिंग है बड़ा इमामबाड़ा, क्योंकि कोई भी पिलर या फिर खंबा नहीं है जो इस इमामबाड़ा को सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल इज बड़ा इमामबाड़ा बाय असफुद्दौला। वेयर इज बड़ा इमामबाड़ा, इट इज़ इन लखनऊ। It was built in 1784. The second example here is सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह जो है इन्होंने पिंक सिटी ऑफ जयपुर बनाया और इसके साथ साथ 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनाए इंडिया में, जिसमें एक तो जयपुर में ही है, एक न्यू दिल्ली में है, थर्ड बनारस में है।
अब तीसरा एग्जाम्पल में आता है अमृतसर के महाराजा रंजीत सिंह। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिख श्राइन को क्या किया, अमृतसर में क्या होता है, तीसरा एग्जाम्पल हमें मिलता है, आई एम सो सॉरी, जहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह जो है वो रेनोवेट करते हैं सिख श्राइन को और उसको डेकोरेट करते हैं, उसके लोअर हाफ को मार्बल से, और बाकी सारा का सारा अपर पोर्शन को क्या किया जाता है, कॉपर के साथ क्या किया जाता है, सरमाउंट किया जाता है, उसके ऊपर एक थिन प्लेट गोल्ड की चढ़ाई जाती है और फिर उसको गोल्डन टेम्पल का नाम दे दिया जाता है। मतलब द लोअर रीजन इज वाइट मार्बल एंड द अपर रीजन इज made of copper and then a plating of gold is kind of surmounted on the copper। तो इसको क्या कहा जा रहा है, गोल्डन टेम्पल। हम आज भी विजिट कर सकते हैं, इट इज़ वेरी मच देयर। उसके बाद फिर चौथा है सूरजमल। सूरजमल जो है ये कौन है, ये जाट लीडर हैं और इनका जो पैलेस है भरतपुर में वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चरल वंडर है इस समय के 18th सेंचुरी की। और ये जो है वॉज प्लान टू राइवल टू म्यूनिफिसेंस द इम्पीरियल पैलेसेस एट आगरा। तो ये ना इम्पीरियल पैलेसेस जो आगरा की थी उसके कहीं ना कहीं उसके समकक्ष में बनाया गया था, उसके जैसा बनाने की कोशिश की गई थी। इसकी कंस्ट्रक्शन की वर्क जो है 1725 में ही स्टार्ट हो गई, बट कंस्ट्रक्शन जो है उसे अनफिनिश्ड छोड़ दिया गया था। तो सूरजमल जाट की जो पैलेस है वो अनफिनिश्ड छूट गई, बट स्टिल इट वॉज ब्यूटिफुल जहाँ तक भी स्टार्ट किया गया। वर्नाक्यूलर लैंग्वेज की बात की जाए तो यहाँ पर उर्दू, हिंदी, बंगाली, असमीज़, पंजाबी, मराठी, तेलुगु, ये सारे लैंग्वेज जो हैं, ये सारे लैंग्वेज, और एंड हाउ कैन वी फॉरगेट तमिल। तो ये सारे लैंग्वेज जो है ना दे ग्रेटली डेवलप्ड। It was during the 18th century that Christian missionaries set up printing presses in India and brought out vernacular editions of Bible। तो जब वर्नाक्यूलर लैंग्वेज जो है वो फ्लरिश कर रही है तो क्रिश्चियन मिशनरीज ने क्या किया, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस वो इंडिया लेकर के आए और वो उन्होंने क्या किया, फिर वो क्या किए, वो उन्होंने ना बाइबल को काइंड ऑफ क्या किया, स्प्रेड करना स्टार्ट किया। जिंगिन बेल जो हैं ये एक डैनिश मिशनरी हैं जिन्होंने क्या किया है, कंपोज किया तमिल ग्रामर को और पब्लिश किया तमिल वर्जन ऑफ बाइबल को। इवन तमिल डिक्शनरी जो है इसको कंपाइल किया गया था इन्हीं मिशनरीज के तरफ से। बंगाल में क्या होता है, बैप्टिस्ट मिशनरीज आते हैं, कैरे, वॉर्ड, मार्शमैन, और फिर ये लोग, कैरे इज़ वेरी फेमस फॉर सेटिंग अप सेरामपुर कॉलेज। तो इसके साथ साथ ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भी प्रिंटिंग प्रेस जो है, कैरे इज़ ऑल्सो फेमस कि इन्होंने जो है ना न्यू टेस्टामेंट को बंगाली में लोकल लैंग्वेज में प्रिंट कराया था। तो सेट अप प्रिंटिंग प्रेस एट सेरामपुर एंड पब्लिश्ड अ बंगाली वर्जन ऑफ बाइबल। एज आई सेड ऑलरेडी, न्यू टेस्टामेंट में हर वो बातें हैं क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड जो जीसस क्राइस्ट ने कहा उनके बर्थ के बाद की है, और ओल्ड टेस्टामेंट इज़ अबाउट द ज्यूइश बिलीफ। सो बात करें next in the topic, that is economic condition. In the beginning of the 18th century, the basic unit of Indian economy was still the self-sufficient, self-governing village। अभी भी basic unit कौन है, सोसाइटी की economic unit, basic economic unit है village। village community produced almost all for its local need। तो अपने local need के लिए उसने सब कुछ खुद ही produce किया। इसकी एकमात्र लिंक क्या थी स्टेट के साथ, कि ये जो है ये लैंड रेवेन्यू स्टेट को पे करती थी, वरना इसे स्टेट की कोई ज़रूरत नहीं थी, अपने सारे नीड के सामान को ये खुद ही प्रोड्यूस करती थी। वाइल रूलर एंड डायनेस्टीज चेंज्ड सीजलेसली, विलेज कम्युनिटीज कैरीज ऑन एज यूजुअल। इट वॉज दिस अनचेंजेबलनेस ऑफ एशियाटिक सोसाइटी। तो अभी हमें दिख रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी कितनी अनचेंजेबल है, कि इतने समय बीत गए, 18th सेंचुरी आ गई, लेकिन अभी भी विलेज ही जो है वो क्या है, रूलर डायनेस्टीज बदली जा रही है लेकिन सोसाइटी नहीं बदली। इसी वजह से विलेज अभी भी जो है वो क्या है, वो इकोनॉमिक लेवल पर दैट इज़ ओनली द बेसिक यूनिट। और इसी अनचेंजेबलनेस ने जो है अट्रैक्ट कर दिया यूरोपियन ऑब्जर्वर्स को, और उन्होंने जो है इंडिया के ऊपर, इंडिया की सोसाइटी के ऊपर क्रिप्टिक रिमार्क्स भी किए। जैसे उन्होंने कहा कि दे लास्टेड व्हेन नथिंग एल्स सीम्ड टू लास्ट। मतलब विलेज तब रह गए जब लग रहा था कि इंडिया का सब कुछ बर्बाद हो रहा है, कुछ भी और लास्ट नहीं करेगा। विलेज कम्युनिटीज दो फैक्टर्स इन इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेबिलिटी वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक स्टेग्नेशन। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो दे रही थी विलेज कम्युनिटी, बट उसके साथ साथ ये इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का भी एक फैक्टर थी। Town handicrafts in India had reached a high level of development and attracted worldwide market.
कॉटन प्रोडक्ट ऑफ डेक्का, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम, सिल्क फैब्रिक ऑफ मुर्शिदाबाद, आगरा, लाहौर, गुजरात, fine woolen shawls and carpets of Kashmir, Lahore, Agra, gold and silver jewelry, metal work, metal utensil, arms, shields फाउंड मार्केट्स बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बट ऐसा नहीं है कि इंडिया में जो है ना हैंडीक्राफ्ट नहीं डेवलप थी। इंडिया की हैंडीक्राफ्ट्स इतनी डेवलप थी, वर्ल्ड वाइड इनका नाम था, इंटरनेशनली फेमस थी। कॉटन जो है डेक्का की, अहमदाबाद की, मसूलीपट्टनम की बात की जाए, सिल्क की तो सिल्क जो है मुर्शिदाबाद, आगरा, लाहौर, गुजरात, और वुलन शॉल्स या कारपेट की बात की जाए तो कश्मीर, लाहौर, आगरा यहाँ की काफ़ी फेमस थी। साथ साथ गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी, मेटल वर्क, यूटेंसिल्स ले लें तो ये सब के सब चीज़ जो इंडिया से जो है ना सिर्फ इंडियन मार्केट में फेमस थी बट अब्रॉड में भी काफ़ी फेमस थी। लार्ज स्केल डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेड जो है वो मर्चेंट कैपिटलिस्ट क्लास को एक नया क्लास लाती है, दैट इज़ मर्चेंट कैपिटलिस्ट क्लास। और फिर इसी के बाद ये क्लास जो है, यही क्लास डेवलप करती है बैंकिंग सिस्टम। तो मर्चेंट कैपिटलिस्ट क्लास के कुछ एग्जाम्पल्स जो हमें देखने को मिल सकते हैं, दैट इज़ द जगत सेठ्स, नगर सेठ्स, ये लोग नॉर्दर्न इंडिया में हैं, और चेतीस जो हैं ये साउथ इंडिया में हैं। और इनका जो है ना इलेबोरेट बैंकिंग हाउस होता था, ये एक्सटेंसिव यूज़ करते थे हुंडीज़ की और दूसरे बैंकिंग प्रैक्टिसेस के, जिससे जो है बहुत ज़्यादा फिलिप मिलता था ट्रेड और कॉमर्स को। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हुंडीज़ क्या थी। तो हुंडीज़ क्या होती थी, ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज होती थी। तो इट वाज जनरली अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो जिस इंसान का नाम लिखा होता था तो उसको बिना किसी कंडीशन के उस स्पेसिफाइड पर्सन को, सपोज ए ने जो है वो बी के नाम पर एक हुंडी लिख दी और ए के पास जो है ए ने सी को कहा ये दे देने के लिए बी को कुछ पैसे, और तो बी को सी जो है वो ए को जानता है बट बी को नहीं जानता है, तो ए के कहने पर सी पैसे देगा। तो ए जो है ना एक रिटन डॉक्यूमेंट लिख करके देगा कि बी को इतने पैसे दे दो बिना किसी कंडीशन के, और ये डॉक्यूमेंट जब बी सी को देंगे तो सी जो है वो बी को वो पैसे देंगे। दिस इज़ ओनली हुंडी। सो इसके साथ साथ अगर हम देखें तो डेवलपमेंट जो इंडियन इकोनॉमी में थी 17 और 18 सेंचुरी में gave some indications that precondition for rapid growth of capitalism did exist। तो कैपिटलिज्म के ग्रोथ के लिए प्री कंडीशंस तो हमें लग रहा है कि इंडिया में ऑलरेडी थी, लेकिन कुछ कंस्ट्रेंट भी थी। क्या कंस्ट्रेंट था? सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है फ्यूडल क्लास का होना, जो एक बहुत ही लैविश लाइफस्टाइल जीते हैं, डिस्प्ले में जीते हैं, सरप्लस पूरा अपने ऊपर बर्बाद कर देते हैं, उससे नया कुछ भी क्रिएट नहीं करते। फिर दूसरा प्रॉब्लम था लॉ ऑफ इस्टीट। फर्स्ट प्रॉब्लम वॉज फ्यूडल क्लासेस, सेकेंड वॉज लॉ ऑफ इस्टीट। लॉ ऑफ इस्टीट क्या कहती है कि प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज नोबेल वॉज टेकन अवे बाय द स्टेट। तो नोबेल को दिया गया ना लैंड, तो नोबेल का लैंड फिर वापस से स्टेट ले लेगी। तो यही सोच करके नोबेल जो है ना वो और ज़्यादा अय्याशी में जीते थे कि मरने के बाद तो वापस स्टेट को चला जाएगा, तो इस लैंड पे क्या ही प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। थर्ड इज एब्सेंस ऑफ करेक्ट सेविंग हैबिट एंड यूज ऑफ सच सेविंग फॉर प्रोडक्टिव पर्पस। जैसा हमने ऑलरेडी बोल दिया कि ये लोग सेव करते नहीं थे क्योंकि फ्यूचर सिक्योरिटी थी नहीं, तो लगता था जितना यूज़ कर ले, और प्रोडक्टिव पर्पस के लिए तो बिल्कुल यूज़ नहीं होता था। एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं थी इंडिया में, और फॉरवर्ड लुकिंग स्टेट भी नहीं था। ये सारे कमियों की वजह से, ये सारे 5 कमियों की वजह से क्या होता है कि इंडिया में जो है एक कंस्ट्रेंट भी मिलता है कैपिटलिज्म के डेवलपमेंट के लिए। प्रेजेंस ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इन द 18th सेंचुरी विथ डीप पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट एडेड। तो यूरोपियन कंपनी के प्रेजेंस से जो है इंडिया का पॉलिटिकल कन्फ्यूजन, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन और बढ़ गया। दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर। इन द नेक्स्ट क्लास विल बी डूइंग द सेकेंड चैप्टर, दैट इज अबाउट द पेशवास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।